Welcome everyone, welcome back to the channel, welcome to Clarity for Sure. Hope you guys are doing well and welcome to another session of EDI examination 2025. So in this session we'll cover 5 most important insurance ratios, right? 5 most important insurance ratios that are very important as far as your EDI examination is concerned, right? So here are the 5 most important ratios which we are going to cover in today's session. Those are claim settlement ratio, CSR. The second one is persistency ratio. The third one is solvency ratio, and the fourth one is combined ratio, right? And the fifth and the last one is incurred claims ratio, right? Incurred claims ratio, that is ICR. So these are the 5 most important ratios as insurance ratios as far as your examination is concerned, right? We'll cover this 5 each and every individually, right? Starting with our very first topic, that is claim settlement ratio, CSR. So what is it? What is claim settlement ratio? So it is basically the ratio of the total number of claims settled by an insurer to the total number of claims received in a given period, usually a year. ठीक है, एक साल के अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कितने टोटल क्लेम सेटल्ड की जाती है बाय टोटल कितने क्लेम्स रिसीव्ड की गई, राइट? सो इसकी जो रेशियो होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो, राइट? सो इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्लेम सेटल्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी by total number of claims received in a given period of time, usually a year, right? It reflects the insurer's efficiency in processing and approving claims, right? Example से समझते, right? जैसे as you can see here, this is an insurance company LIC, as you all know, right? So total claims जो received की गई by the insured people, दिस कंपनी के पास वो है 5 टोटल 5 कंप्लेंट्स सॉरी क्लेम्स रिसीव की गई बाय द इंश्योर्ड पीपल, राइट? और उसमें से सेटल्ड कितनी हो पाई? 4 हो पाई. 4 क्लेम्स हैज बीन सेटल्ड सो फार. इसका मतलब ये हुआ कि एक जो क्लेम है वो या तो रिजेक्ट हो गया या तो अप्रूव नहीं हो पाया, राइट? यहाँ तक का सीन क्लियर है? तो अब इस केस सिनेरियो के हिसाब से जो है इसका CSR, दैट इज केस क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होना चाहिए? तो CSR का ये फॉर्मूला है, टोटल क्लेम सेटल्ड बाय टोटल क्लेम्स फिल्ड. टोटल कितनी क्लेम सेटल्ड हुई बाय टोटल क्लेम कितनी रिसीव्ड हुई, एज द डेफिनेशन स्टेट्स इटसेल्फ, राइट? सो टोटल क्लेम्स कितनी सेटल्ड हुई थी? 4, राइट? 4 क्लेम सेटल्ड हुई थी और टोटल क्लेम रिसीव्ड कितनी हुई थी? 5, राइट? सो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला में अप्लाई करने के बाद 4/5 जो कि 80% होता है. कैसे होगा 80%? टोटल क्लेम कितनी थी? 5. तो 5 का जो परसेंट है वो 100% होगा. टोटल क्लेम रिसीव की गई थी 5, ठीक है? तो एक क्लेम का वैल्यू कितना हुआ? 20%, 20%, राइट? तो 4 क्लेम का मतलब 4 क्लेम जो सेटल हो पाया वो कितना वैल्यू होगा आउट ऑफ 5? 4 into 20, that is 80%, right? 4 into 20, that is 80%. So 80% of the claims has been settled so far. This is the claim settlement ratio in this scenario, right? This means the insurance company has settled 80% of the claims filed by the policy holders, showing its efficiency in processing claims regardless of the whether they were approved or rejected, right? And it shows a high claim paid ratio, shows the insurer's reliability and customer trustworthiness. Clear है? This was the CSR, that is claim settlement ratio. Moving to the next topic, that is persistency ratio. What is this persistency ratio? Persistency ratio shows the percentage of policy holders who continue paying premiums beyond the first year or over a specific period, right? मतलब
जो भी कस्टमर्स है राइट, उनके द्वारा सपोज एक कंपनी है, उसका जो प्रीमियम पे की गई राइट, मतलब एक पॉलिसी परचेज किया गया, तो नेक्स्ट ईयर में वो जो कस्टमर है उसी कंपनी से जो प्रीमियम है वो परचेज करता है कि नहीं, इसी को बोलते हैं प्रीमियम परसिस्टेंसी रेशियो। मतलब कितना कस्टमर्स ने वापस से उस पॉलिसी की रिन्यू करवाया है फ्रॉम द सेम कंपनी राइट। सो दिस इज बेसिकली द persistency ratio. It measures the customer satisfaction towards the service of the company, loyalty towards the company, and insurer's ability to retain its customer. कि इंश्योरर का कितना एबिलिटी कि वो अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाए, ईयर ऑन ईयर उससे प्रीमियम्स जो है रिन्यू करवा सके, ताकि वो दूसरे कंपनीज में स्विच ना कर जाए ना, या तो वो इंश्योरेंस लेना ही छोड़ दे राइट। तो इस तरह का जो एबिलिटी है वो दिखाता है परसिस्टेंसी रेशियो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसा कि एक कंपनी HDFC लाइफ, एज यू ऑल नो इंश्योरेंस कंपनी HDFC लाइफ, पहला ईयर जो है टोटल 6 पॉलिसी होल्डर्स उसके पास थे जिन्होंने प्रीमियम पे किया था राइट। टोटल 6 पॉलिसी होल्डर्स थे जिन्होंने प्रीमियम परचेज की थी। सेकेंड ईयर आते आते टोटल 4 कस्टमर्स ही बचे जिन्होंने वापस से इस प्रीमियम को परचेज किया है, इस पॉलिसी को वापस से परचेज किया और रिन्यूअल करवाया राइट। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 2 कस्टमर्स ने ये पॉलिसी लेनी छोड़ दी राइट। सो दिस इज द सिनेरियो हियर राइट। सो दिस मीन्स 2 पॉलिसी होल्डर्स डिडंट रिन्यूड देयर पॉलिसीज राइट। सो पॉलिसी होल्डर्स पेइंग प्रीमियम्स एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टोटल कितना है 4। मतलब सेकेंड ईयर के खत्म होने पे टोटल कितने प्रीमियम होल्डर्स वहां पे बचे, 4, टोटल 4 प्रीमियम होल्डर्स बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर राइट। टोटल एक्टिव पॉलिसी होल्डर्स, टोटल एक्टिव पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं, टोटल 6 है ना, जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे 6 है राइट, टोटल एक्टिव पॉलिसी होल्डर्स। तो इसका फॉर्मूला पे आते हैं, persistency ratio is equal to number of policy holders paying premiums right by the total active policy holders into 100. So total जो policy number of policy holders paying premiums कितनी थी 4 right। सेकेंड ईयर में कितनी बची 4, टोटल कितनी थी 6 into 100 is equal to 66.66% right। So this means the insurance company could only retain 66.66% of their policy holders। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने सिर्फ अपना 66.66% ही कस्टमर को रिटेन कर पाई राइट, एंड लॉस्ट अदर पॉलिसी होल्डर्स, बाकी पॉलिसी होल्डर्स को उसने खो दिया। क्लियर, विच शोज द कंपनीज पुअर एबिलिटी टू रिटेनिंग इट्स पॉलिसी होल्डर्स। ऑब्वियसली इट शोज द पुअर एबिलिटी टू रिटेनिंग इट्स कस्टमर्स राइट। अगर टोटल 90% से ऊपर होता तब हम लोग बोल सकते हैं ठीक है एबिलिटी इज गुड कि वो वापस से रिटेन कर पा रही, सर्विस इज गुड, जो पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है उसकी सर्विस अच्छी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छा है, ठीक है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है। तो इफ दिस रेशियो इज लो इट मे इंडिकेट्स दैट द इंश्योरर्स सर्विसेज claims process or customer support are not meeting customers expectation। ठीक है, ये सब कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर रहे, उसकी सर्विस, उसकी कस्टमर सर्विस और कस्टमर सपोर्ट, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस जो है कस्टमर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है राइट। सो दिस वाज द परसिस्टेंसी रेशियो। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर सॉल्वेंसी रेशियो राइट। सॉल्वेंसी रेशियो, सो सॉल्वेंसी रेशियो क्या होती है, इट मेजर्स एन इंश्योरर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर करती है, एंड एबिलिटी टू पे क्लेम्स, एंड इट्स एबिलिटी टू पे क्लेम्स, जितनी क्लेम्स की गई उतना वो पे कर सकती है कि नहीं, सक्षम है कि नहीं राइट। इवन इन द एक्सट्रीम सिचुएशंस, इवन इन द एक्सट्रीम सिचुएशन लाइक सडन सर्ग्यू इन क्लेम्स में अचानक से बढ़ोतरी हो जानी, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे कि कोविड
राइट। सो इन केस में किस तरह कंपनी अपनी सारी क्लेम्स को अच्छे से पे कर सकती है, राइट, सेटल कर सकती है कि नहीं, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियो। एडाई mandates a minimum solvency ratio of 150% for insurers to protect the interest of policy holders. एडाई mandates 150%, राइट, ये याद रखें आप लोग, एडाई कितना मैंडेट करता है, 150% फॉर इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट, राइट, मिनिमम सॉल्वेंसी इतना मैंडेट करना होगा टू द इंश्योरेंस कंपनी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स लाइक द पॉलिसी होल्डर्स, राइट। एग्जाम्पल से अगेन, इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, राइट। सो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड SBI लाइफ। SBI लाइफ इज एन इंश्योरेंस कंपनी एज यू ऑल नो। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी देख लेते क्या है। अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन कितनी है इसके पास, 300 करोड़। अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन क्या होती है, इट इज द एक्स्ट्रा मनी और कुशन एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज आफ्टर इट पे ऑफ ऑल इट्स करेंट एंड एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज। मतलब कंपनी के द्वारा उसकी जितनी भी करंट और एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज को पे करने के बाद उसके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी बच जाती है, दैट इज एक्स्ट्रा कुशन और अवेलेबल सॉल्वेंसी मार्जिन, राइट। एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज क्या हुई, जैसे कि क्लेम्स, लोन्स एंड अदर एक्सपेंसेस, राइट। द नेक्स्ट थिंग हियर इज रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी मार्जिन। वो कंपनी के पास कितनी है, 150 करोड़, राइट। सो RSM इज द मिनिमम बफर ऑफ मनी दैट द इंश्योरेंस रेगुलेटर लाइक एडाई इन इंडिया डिमांड्स द कंपनी टू कीप। मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी आपको रिजर्व रखनी होगी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस और हाई डिमांड ऑफ क्लेम्स, राइट। और ये रेगुलेट कौन करती है, ऑब्वियसली द इंश्योरेंस रेगुलेटर इन इंडिया, दैट इज एडाई, राइट। बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ रिस्क इट टेक्स and it vary to company and it completely based on the level of risk it takes, the company takes, right. This ensures the company can meet policy holders claim even in the extreme situation, in the financial crisis, right. Here you can see in example SBI life have ASM, that is a safety net the company can use to manage unforeseen situation like a sudden surge in the claims, right. That is total assets minus total liabilities. वो टोटल कितनी थी ASM कंपनी के पास, 300 करोड़, 300 करोड़, राइट। और सेकेंड थिंग जो है वो है RSM, राइट, विच इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स लाइक रिस्क टेकन बाय इंश्योरर, प्रीमियम्स कलेक्टेड, क्लेम्स हिस्ट्री etc एटसेट्रा, इज कैलकुलेटेड एज 150 करोड़। 150 करोड़ है यहाँ पे, ठीक है। ASM कितनी थी, 300 करोड़, RSM कितनी है, 150 करोड़, क्लियर है। सॉल्वेंसी रेशियो के फॉर्मूला पे आ जाते हैं, राइट। ASM बाय RSM इंटू 100, राइट, ये रेशियो है ASM बाई RSM इंटू 100, ठीक है। टोटल 300, टोटल कितनी थी ASM इसके पास 300, कंपनी के पास 300 करोड़, राइट। RSM कितनी थी 150 करोड़, राइट, इंटू 100 इज इक्वल टू 200%. दिस मीन्स SBI लाइफ हैज 200% solvency, meaning its available margin is well above the regulatory requirement that was 150%, ठीक है, जो एडाई के द्वारा फिक्स की गई है। इट इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू पे क्लेम्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वेदर इट बी फाइनेंशियल क्राइसिस और हाई डिमांड इन द क्लेम्स, राइट। इफ द सॉल्वेंसी रेशियो इज बिलो 150%, 150% से अगर नीचे रहती है, इट मे मीन द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू मीट its claims, right, which can be put policy holders at risk. That's why EDI mandates at least you have to pay 150% of solvency ratio, right. A higher solvency ratio that is above 200% is always a better as it assures financial safety and reliability in the company, right. Clear है।
नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंबाइंड रेशियो। हमारा जो फोर्थ टॉपिक है दैट इज कंबाइंड रेशियो। सो व्हाट इज इट, व्हाट इज कंबाइंड रेशियो? इट इज बेसिकली measures an insurer's profitability by comparing its claim payouts, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंपेयर करके उसकी प्रॉफिट को निकालता है, जांचता है, टू द प्रीमियम्स इट अर्न्स। It shows whether the insurer is earning a profit or a loss in its core insurance business, कि वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने इंश्योरेंस बिजनेस से या तो प्रॉफिट कर रहा है या तो लॉस कर रहा है, राइट। तो उसको जो मेजर करती है वो है कंबाइंड रेशियो। एग्जाम्पल से समझते, हियर यू कैन सी द इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे सपोज भारतीय एक से इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इसके पास प्रीमियम कलेक्टेड, ठीक है, एक तरफ प्रीमियम कलेक्टेड है। इस फिगर से आप क्या फिगर आउट कर पा रहे कि ये वाली जो साइड है वो झुकी हुई, दिस मीन्स कि इसका वेट ज्यादा है, मतलब जो प्रीमियम कलेक्टेड है बाय द कंपनी इज ग्रेटर देन द क्लेम्स पेड एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनीज, and in this scenario there is always a profit situation। जब भी प्रीमियम कलेक्टेड वाली जो साइड है वो ज्यादा होगी कंपेयरिंग टू द क्लेम्स पेड प्लस एक्सपेंसेस, तो ऑब्वियसली देयर इज अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। ऑन द अदर हैंड यू कैन सी हियर एक स्टार हेल्थ कंपनी है, राइट, इसकी जो एक्सपेंसेस है एंड द क्लेम सेटल्ड है, उसकी जो साइड है वो झुकी हुई, विच मीन्स कि इसकी जो वेटेज है वो ज्यादा है, एंड दैट डायरेक्टली मीन्स कि दिस इज अ लॉस सिचुएशन, कि दो द कंपनी इज पेइंग मोर क्लेम्स एंड इन्वेस्टिंग मोर इन देयर मोर एक्सपेंसेस, राइट, एज कंपेयर टू द प्रीमियम कलेक्टेड बाय द कस्टमर्स। तो इस केस सिनेरियो में हमेशा लॉस आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में समझ लेते, इस केस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बोला जा सकता है कि प्रीमियम कलेक्टेड इज 100 करोड़, राइट। यहाँ पे शो नहीं हुआ है, राइट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सपोज प्रीमियम कलेक्टेड इज 100 करोड़, राइट, एंड द सेकेंड वन इज क्लेम पेड। कितनी क्लेम पेड की गई है? 60 करोड़। एक्सपेंसेस टोटल कितने थे? 30 करोड़। कंबाइंड रेशियो फॉर्मूला पे आ जाते हैं हम लोग। कंबाइंड रेशियो फॉर्मूला इज इक्वल टू एक्सपेंसेस रेशियो प्लस लॉस रेशियो। एक्सपेंसेस का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा प्लस लॉस रेशियो इज इक्वल टू कंबाइंड रेशियो, राइट। सो कैलकुलेशन कैसे? लॉस रेशियो का हम लोग पहले निकालते हैं, लॉस का रेशियो निकालते हैं। क्लेम्स पेड कितनी की गई थी? 60 करोड़ बाय प्रीमियम कलेक्टेड। टोटल प्रीमियम कितनी कलेक्ट की गई? 100 करोड़, राइट, इनटू 100 इज इक्वल टू 60 बाय 100 इनटू 100 इज इक्वल टू 60%। दिस इज द लॉस रेशियो। प्लस एक्सपेंसेस रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग? एक्सपेंसेस 30 करोड़ की टोटल एक्सपेंसेस थी बाय प्रीमियम्स कलेक्टेड। टोटल प्रीमियम्स कितनी कलेक्ट की गई? 100 करोड़ इनटू 100 इज इक्वल टू 30% is equal to 30%. This is our expense ratio, right? So combined ratio का formula क्या था? Expense ratio that is 60% plus 30% that is loss ratio plus expense ratio that is 60% plus 30% is equal to 90%. This is our combined ratio. Clear? This is our combined ratio and this is the formula of combined ratio. Right? Clear है? Moving to the last topic, last but not the least, incurred claims ratio, that is ICR, right? Incurred claims ratio. ये क्या होता है? ये देख लेते हैं। Measures the ratio of net claims paid by the insurer to the net premiums collected. ठीक है? It is the ratio of net claims paid to the customers by insurers to the net premiums collected by the insurers. Right? It shows how effectively the insurer balances premium collection and claim payments. Right? It show कि कैसे effectively जो है इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरर बैलेंस को बैलेंस रखती है, राइट, बाय द प्रीमियम कलेक्शन एंड क्लेम पेमेंट्स। अगेन
with the help of example we will going to understand this topic. There is a company called Aviva Life Insurance, right? There is a company called Aviva Life Insurance. Premiums collected, net premium collected, right? Net premium collected, total what amount of net premium collected by this particular company, and net claim settled by this particular company, right? Here you can see the insurer, suppose insurer collects 500 crores in premiums, मतलब 500 करोड़ की प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी जो है कलेक्ट करती है, राइट? 500 CR की जो प्रीमियम्स है वो ये कंपनी कलेक्ट करती है, राइट? इन द प्रीमियम्स एंड पे 300 करोड़ इन क्लेम्स, और 300 करोड़ जो है एज अ क्लेम वो पे करती है. सो इसका जो डिफरेंस है 200 CR, राइट? दैट इज द प्रॉफिट for the company, right? Net profit. So net claim settled 300 crores, net premium collected 500 crores. Coming to the ICR, that is incurred claims ratio, right? Incurred claims ratio, ICR is equal to, इसकी फॉर्मूला पे आ जाता है, ICR की फॉर्मूला पे net claims settled by net premium collected. नेट जो प्रीमियम कलेक्ट की गई थी, कितनी की गई थी? 300, राइट? लेंथ क्लेम सेटल्ड, सॉरी, दिस वाज द क्लेम सेटल्ड. फर्स्ट थिंग इज द क्लेम सेटल्ड. कितनी क्लेम सेटल्ड की गई? 300, राइट? 300 करोड़ बाय नेट प्रीमियम कलेक्टेड. टोटल कितनी प्रीमियम कलेक्ट की गई? 500 करोड़ इज इक्वल टू 60%, राइट? मतलब 60% इज द ICR. And ICR between 50% and 100% is considered healthy. मतलब 50 से 100% तक अगर रहा ICR तो that is considered as healthy. But below 50% it suggests that the insurer prioritize profitability. अगर जितना कम रहा, जैसे 50% से कम रहा, तो वो ये दर्शाता है कि इंश्योरर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा, राइट? बशर्ते अपने जो कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है उसके तरफ. एंड अबव 100% इट सिग्नल फाइनेंशियल स्ट्रेन. और 100% से यदि ज़्यादा हो जाए तो उसका मतलब देयर इज अ फाइनेंशियल स्ट्रेन, फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंपनी, राइट? मतलब ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इशू है इन द कंपनी, और जितना कम रहेगा, जितना बैलेंस्ड रहेगा, उतना अच्छा मेंटेन, वेल बैलेंस्ड है कंपनी. सो दैट वाज द concept, right? And that's it for the session. These were the 5 most important insurance ratios which are very important for your examination. And that's it for the session. Hope you like the video. If you like the video, please do subscribe our YouTube channel, like the video, and follow us on Telegram and Instagram as well for daily updates. Thank you so much.